Hello, my dear students. I, Praveen Dubey, once again I welcome you all to RBS Classes, the Pariksha Guru. And here I am to tell you important facts related to English, especially for TGT, PGT, LT, NET, GRF and higher education. As you know that the vacancies for TGT and PGT, Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Seva Chayan Board has been released, and now you have great opportunities to get success. But for that, you must subscribe, watch, like and share. And in order to get all the notifications of this channel, don't forget pressing bell icons. What I would like to tell you today first, that how success comes. Success comes only after determination, only after devotion, but this determination and devotion must be according to the time. And if you don't start at the right time, the success will not fall on you. So start preparing for TGT and PGT both in order to coin the opportunity, catch the opportunity right now, right from here. And today I have brought for you a very important topic, especially for PGT, but definitely that will work in TGT too. And the topic is John Keats and his philosophy of poetry, philosophy of life, and especially the theory of poetry. Simply one thing what you have to keep inside your brains, that in this class we are not going to see the biography of John Keats, but the philosophy of John Keats, the theory of John Keats, that is found in his poetry. John Keats. John Keats, first of all, you must know the duration of his life, and for that you must go through the birth year, that is 1795, and he died in 1821. You can see that he lived in this world only 25 to 26 years. केवल 25 और 26 साल के बीच में रहे, तो मान के चलिए कि उस लगभग 25.5 साल इस दुनिया में रहे. And he earned a lot of popularity, a lot of fame. बहुत ज्यादा popularity उन्होंने इसमें अर्जित किया. And what is your job to understand here? आपका पहला काम क्या होना चाहिए कि समझें कि in just 25 to 26 years, he received or he got a lot of respects, a lot of popularity, and it was an extraordinary thing, and a common man cannot do that. A common व्यक्ति उसे नहीं कर सकता है. And John Keats is so popular that even a common student of literature knows him well. इनको बहुत अच्छे तरीके से जानता है. John Keats got a great popularity, and he not only got a great popularity, but he provided a great popularity to a very popular poet and dramatist, and that was William Shakespeare. जॉन कीट्स अपने जीवन में खुद पॉपुलर तो बने ही बने, प्लस एक व्यक्ति को उन्होंने पॉपुलैरिटी दिलाई जितना पहले से थी उसमें उन्होंने 4 चांद लगा दिया, एंड दैट मैन वाज विलियम शेक्सपियर. कैसे उन्होंने विलियम शेक्सपियर को पॉपुलर होने में योगदान दिया, दैट विल डिस्कस टुडे, एंड हाउ ही हिमसेल्फ गॉट great popularity, that will be discussed in this video. And
his philosophy, his theory of poetry we are going to discuss in this video. So the very first thing that you came to know that he was born somewhere in 1795 and unfortunately untimely he died in 1821 when he was just 25 to 26 years. ठीक है, 25-26 साल के बीच में उनकी डेथ हो गई. यहां आप देख सकते हैं कि he was born in 1795 and when he started composing his poems, his poetry, he was not more than 25 क्योंकि उतने में तो उनकी डेथ ही हो गई. And only 4 years his publications took place. जो उनके publications थे किताबों के, writings के, केवल 4 years तक ही रहे उनके जीवन काल में. Right from 1795 he started his life, and right from 1817 he started writing the things, and in 1821 he died. Right from 1817 to 1821, only 4 years his writings came out. Means his literary career you can summarize only within 4 years. Okay, and you know that romantic age in Europe began in 1798. This is the year romantic age began. Romantic age began with the publication of lyrical ballads, a joint venture of Wordsworth and Coleridge. This is the year which is supposed to be the year of the commencement of romantic era. ऐसा माना जाता है कि 1798 में रोमांटिक एज की शुरुआत हुई और ये कब से कब तक रहा? राइट फ्रॉम 1798 टू 1832 और 1837. इसका मतलब जो लिटरेरी कैरियर का ईयर था, जो 4 साल ये रहे महत्वपूर्ण जॉन कीट्स की लाइफ में, those 4 years belong to romantic era. तो बताने की जरूरत नहीं है कि जॉन कीट्स is a great romantic poet belonging to romantic age. एक बहुत ही महान रोमांटिक पोएट थे और रोमांटिक एज से वो बिलोंग करते हैं. रोमांटिक पोएट बिलोंगिंग टू रोमांटिक एज. सो यहां देखिए कितनी महत्वपूर्ण बातें आपको मैंने अभी तक बताई. अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, सबसे महत्वपूर्ण बात जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो क्या है? जॉन कीट्स belongs to the second generation of romantic poets. Second generation of romantic poets. अब यहां देखिए, poets of the second generation. Poets of the second generation. Second generation के poets कौन कौन थे ये देखिए. सबसे पहले तो
जॉन कीट्स, दूसरे पीबी शेले एंड P.B. Shelley and Lord Byron. These are the poets of the second generation of romantic era. Number one, पूछा जा सकता है, ध्यान रहे, John Keats, P.B. Shelley and Lord Byron, these are considered to be the poets of the second generation of romantic era and poets of the first generation. ये देखिए, अगर सेकंड जनरेशन है तो फर्स्ट जनरेशन भी होगा. पोएट्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन के पोएट्स ये कौन कौन है? विलियम ब्लेक, वर्ड्सवर्थ, and Coleridge. You can see that these three poets are considered to be the poets of the first generation, and these three poets are supposed to be the poets of the second generation. So John Keats falls in the second generation. पहली चीज आपको बताई गई कि John Keats was born in 1795, and when he started his literary career it was romantic age, and he is considered to be the poet from the second generation of romantic age. और second generation में ये poets थे, first generation में ये poets थे. और जो second generation था, second generation of romantic era was highly active during 1820s. 1820 के दशक में ये बहुत ज्यादा एक्टिव था. ठीक है. John Keats got a great popularity, and at the same time he provided a great popularity to a great man, and it was William Shakespeare. And how he did that, कैसे उन्होंने ये किया? Actually John Keats once said, जॉन कीट्स ने अपने लेटर्स उनके बहुत पॉपुलर हैं, उन्होंने कहा शेक्सपियर, ये जॉन कीट्स का स्टेटमेंट है, Shakespeare had negative capability in his dramas. John Keats ने कहा कि शेक्सपियर हैड नेगेटिव कैपेबिलिटी इन हिज ड्रामाज. एंड नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या होती है? व्हाट इज नेगेटिव कैपेबिलिटी? यू मस्ट नो. ट्राई टू अंडरस्टैंड नेगेटिव कैपेबिलिटी, हाउ विलियम शेक्सपियर became popular and how the popularity was added through the saying of John Keats. Negative capability, try to understand. दुनिया में किसी भी व्यक्ति के पास अगर ये नेगेटिव कैपेबिलिटी होगी तो उसको पॉपुलर होने से कोई नहीं रोक सकता है. Negative capability simply means in a very common words, एक common words में negative capability सुनिए क्या होती है? The capability to negate oneself. जब आपको खुद को नकारने की क्षमता आ जाए, मतलब आप मान लीजिए कोई रोल अदा कर रहे हैं और आप उस रोल में इतना खो जाइए,
इतना खो जाइए कि आपको अपने बारे में कुछ पता न रह जाए। कैसे? जैसे किसी फिल्म में आप देखते हैं, मान लीजिए अमिताभ बच्चन कोई मामूली सा गरीब व्यक्ति का रोल अदा कर रहे हैं। अगर उस समय वो याद कर लें कि वो महानायक हैं और वो बहुत बड़े आदमी हैं, उनकी पॉपुलैरिटी असीमित है, तो ही विल नॉट एग्जैक्टली बी एबल टू प्ले दैट वेरी रोल ऑफ अ पुअर मैन। वो एक गरीब व्यक्ति का रोल अदा करने में अपने आप को सक्षम नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्हें बार बार याद आएगा कि ये मेरा कल्चर नहीं है, ये मेरे तौर तरीके नहीं हैं, ऐसे मैं नहीं रहता हूँ, व्हाट एम आई डूइंग, मैं क्या कर रहा हूँ। तो निश्चित रूप से वो रोल अदा नहीं कर पाएंगे। एंड इन ऑर्डर टू डू अ ग्रेट रोल, अच्छा रोल करने के लिए व्हाट इज नीडेड, क्या आवश्यकता है उनको, अच्छा रोल अदा करने के लिए महत्वपूर्ण है कि वो ये भूल जाएं कि वो अमिताभ बच्चन है। ही हैज टू निगेट हिमसेल्फ, अपने आप को नकारना है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे उनकी एक फिल्म है अमिताभ बच्चन की, फिल्म का नाम है सौदागर। अमिताभ बच्चन की मूवी है, पुरानी है, काफी पुरानी है। उसमें जो अमिताभ बच्चन होते हैं उनका नाम होता है मोती, और वो गुड़ बेचने का काम करते हैं मेले में। अच्छे से समझिएगा, नेगेटिव कैपेबिलिटी समझा रहा हूं। आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड नेगेटिव कैपेबिलिटी, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेल, ठीक है। तो अमिताभ बच्चन का नाम होता है मोती। तो अमिताभ बच्चन गुड़ बेचने का काम करते हैं और बहुत ज्यादा उनका गुड़ बिकता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी आती है कि वो किसी दूसरी महिला से शादी कर लेते हैं, तो जो गुड़ बनाने वाली होती है वो बदल जाती है, गुड़ खराब बनने लगता है। फिर वो दिन भर गुड़ लेके बैठे होते हैं मेले में, बिकता नहीं, मक्खियां ऐसे ऐसे उड़ाते रहते हैं, साफ करते रहते हैं। मतलब बड़ी ही मिजरेबल प्लाइट उनकी होती है, मिजरेबल कंडीशन में वो पहुंच जाते हैं। अगर केवल उनको कोई देखे, उस समय मोती का गुड़ होता रहता था, अब मोती को कोई पूछ नहीं रहा है, केवल उसको देखेगा कोई व्यक्ति तभी उस रोल को समझ पाएगा। अगर उसमें अमिताभ बच्चन की जो जेन्युइन इंडिविजुअल और रियल पर्सनैलिटी है उसको मिक्स कर देगा, तो ही विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ मोती परफॉर्म्ड बाय अमिताभ बच्चन। तो क्या मतलब समझिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रोल अमिताभ बच्चन डिड इन दैट, एंड व्हाई he became successful, how he became successful, you know, only and only because of his negative capability, because Amitabh Bachchan has the power to negate himself and he infuses his own personality into the personality of the role given to him, the personality of the character given to him. This is the reality. तो शेक्सपियर के लिए जॉन कीट्स ने कहा कि शेक्सपियर जब किसी डकैत के बारे में लिखते हैं तो उनकी पर्सनालिटी डकैतों की हो जाती है। जब किसी महिला की पर्सनालिटी, उसके कैरेक्टर के बारे में लिखते हैं तो वो महिला दिखने लगते हैं, अपनी पर्सनालिटी उनकी गायब हो जाती है। इसीलिए कभी कभी कहा जाता है कि शेक्सपियर शायद महिला थे, शेक्सपियर शायद डकैत थे, शेक्सपियर सब कुछ थे, बिकॉज ही क्रिएटेड 1287 कैरेक्टर्स इन हिज लाइफ टाइम। अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने 1287 कैरेक्टर्स बनाए, एंड 1287 कैरेक्टर्स आर इंडिविजुअल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एंड नो वन कैरेक्टर इज सिमिलर टू अदर कैरेक्टर। एक कैरेक्टर दूसरे से मेल नहीं खाता। ये किसकी खूबी है? कैरेक्टराइजेशन ऑफ शेक्सपियर। और इसको पहली बार ढंग से पहचानने का काम किया जॉन कीट्स ने। अगर किसी भी पेपर में, एग्जाम में आ जाता है कि हु क्वाइंड द फ्रेज नेगेटिव कैपेबिलिटी, इस फ्रेज को किसने क्वाइन किया, तो आपका जवाब होगा जॉन कीट्स। जॉन कीट्स ने इसको क्वाइन किया। पहली बार इन्होंने किसके लिए क्वाइन किया? विलियम शेक्सपियर के लिए।
for विलियम शेक्सपियर। पहली बार ये विलियम शेक्सपियर के लिए क्वाइन किए। देखिए बड़ी कॉमन सी बात है, अगेन एंड अगेन आई से दैट literature is always the product of its society, its background and the experiences of its author। जो कोई लिखता है उसके एक्सपीरियंसेस से निकल कर आता है लिटरेचर। जैसा हमारा एक्सपीरियंस होगा, जैसी लाइफ हम लीड कर रहे होंगे, वैसा ही लिटरेचर हमारा सामने आएगा। एक्चुअली इन द बिगिनिंग जॉन कीट्स वांटेड टू बी अ डॉक्टर। जॉन कीट्स एक डॉक्टर बनना चाहते थे, but unfortunately John Keats became a patient। बनना चाहते थे वो डॉक्टर, लेकिन भाग्य का कुछ पता नहीं कि किसको क्या बना दे, किसको कहां लेकर चली जाए। आप बहुत मेहनत करें फिर भी शायद आपको कुछ न मिले, बहुत कम मेहनत करें फिर भी जीवन में आपको बहुत कुछ मिल जाए। Because Shakespeare himself says that there is no poetic justice in life, and that is why in his writings, in his dramas, especially in his tragedies, you don't find poetic justice, because he wanted to present life as it is। क्योंकि वो वैसे ही जिंदगी को दिखाना चाहते थे जैसे कि जिंदगी है। अब सोचिए जॉन कीट्स ने जीवन में क्या गलती की थी। He wanted to be a doctor, but he became a patient, and he started suffering from a fatal disease। Fatal disease simply means John Keats suffered from a fatal disease। Tuberculosis। जॉन कीट्स ट्यूबरकुलोसिस से सफर कर रहे थे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्यूबरकुलोसिस? टीबी, ट्यूबरकुलोसिस ब्रोंकाइटिस से ये सफर कर रहे थे, एंड दैट वाज अ फैटल डिजीज। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फैटल डिजीज? फैटल डिजीज सिंपली मींस when the death is inevitable because of this disease। जब मौत अपरिहार्य हो, मौत को आना ही हो, उसे टाला ना जा सकता हो, इसी बीमारी के कारण। आज आपको टीबी बड़ा आसान सा रोग लगता होगा कि आसानी से इसका उपचार हो जाएगा, लेकिन जॉन कीट्स के समय में ये एक असाध्य बीमारी थी, एंड इट कुड नॉट बी क्योर्ड। देयर वाज नो रेमेडी ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। इट वाज ऑलमोस्ट अ डिक्लेरेशन ऑफ डेथ। ये लगभग डेथ का डिक्लेरेशन था कि अब तो मौत आएगी ही आएगी। ठीक है, फैटल डिजीज थी। अब आप जरा सा सोचने और समझने का प्रयास करिए। एक व्यक्ति जिसे ये पता हो कि उसकी डेथ बिल्कुल इनएविटेबल है और नजदीक है, साल 2 साल 3 साल में उसकी मौत हो जाएगी, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस ही विल हैव। कैसे उसके एक्सपीरियंसेस होंगे? आपको पता चल जाए कि आपकी लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो आपके एक्सपीरियंसेस कैसे होंगे? इवन आफ्टर दैट, इसके बावजूद जॉन कीट्स डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ beauty, but unfortunately his concept of beauty is tragic concept of beauty। देखिए जॉन कीट्स deals with the concept of ब्यूटी। यहां देखिए महत्वपूर्ण बात, हिज कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी इज ट्रेजिक कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी।
ट्रेजिक कंसेप्ट ऑफ ब्यूटी। आमतौर पे कहा जाता है कि सौंदर्य से डील करते हैं जॉन कीट्स। कहा जाता है कि उनका कंसेप्ट ऑफ ब्यूटी है जो कि उनकी पोएम्स में, उनकी पोएट्री में, उनकी राइटिंग्स में दिखता है। लेकिन बहुत कम लोग उस ब्यूटी के पीछे छुपी हुई वेदना को देख पाते हैं, और जिसने उस ब्यूटी के पीछे छुपी हुई वेदना को देख लिया वही जॉन कीट्स को समझता है। क्योंकि लाख कोई छुपा ले, अपनी वेदना को कैसे छुपा पाएगा। जिसको पता हो कि वो साल 2 साल 3 साल में मर जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, वो कितनी भी खुशी जाहिर करना चाहे लेकिन एक वेदना उसके पीछे छुपी हुई जरूर होगी, और जॉन कीट्स वही थे। तो उनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी है दैट इज ट्रेजिक कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी। वो ट्रेजिक कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी है। कैसे? इन्होंने कहा, अब यहां देखिए चीजों को कनेक्ट करिए, जस्ट ट्राई टू कनेक्ट द थिंग्स। इन्होंने कहा कि ऐसे मानिए कि जॉन कीट्स belongs to the school art for art's sake। यहां आर्ट्स में जो मैंने एपोस्ट्रोफी लगाया, नहीं भी लगाएंगे तो भी वही कॉन्सेप्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आर्ट फॉर आर्ट से, कला के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जॉन कीट्स बिलोंग्स टू द स्कूल मीन्स विचार, स्कूल आर्ट फॉर आर्ट से, कला के लिए। मतलब कि जॉन कीट्स और द कंपोनेंट्स ऑफ द स्कूल आर्ट फॉर आर्ट से do not try to find life in the writing, they do not try to find life in art। वो कला में जीवन नहीं खोजते हैं, वो कला को बस कला के तरीके से देखते हैं। आर्ट फॉर देम इज अ काइंड ऑफ ब्यूटी इन इटसेल्फ। इनके लिए जो कला है वो अपने आप में एक सौंदर्य है, अपने आप में एक सुंदरता है। एंड द कंपोनेंट्स who believe in the school art for art's sake think or conceptualize that art is permanent and life is transitory। For him का मतलब जितने भी कंपोनेंट्स हैं आर्ट फॉर आर्ट से वाले, फॉर हिम आर्ट इज permanent and life is transitory। and life बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बहुत मजेदार, बहुत ही थॉटफुल स्टेटमेंट है। and life is transitory। अगर आपको अस्थायित्व चाहिए, if you want stability, if you want permanence, you must take shelter in art। क्योंकि कला कभी नहीं बदलती, परमानेंट होती है, और जिंदगी में बहुत सारे परिवर्तन हैं। आज एक छोटा सा बच्चा दिखता है, 10-20 साल बाद वो जवान दिखने लगेगा, फिर बूढ़ा हो जाएगा, मर जाएगा। जिंदगी में परिवर्तन ही परिवर्तन है। लेकिन कला, एक बार अगर कोई पेंटिंग बना के रख दी गई, एक बार 10 लोगों की तस्वीर साथ में ड्रा कर ली गई, अब जब भी कभी देखेंगे वो वैसे ही नजर आएंगे, वो कभी परिवर्तित नहीं होंगे। तो अगर आपको परमानेंस चाहिए तो आप आर्ट में शरण लीजिए, जिंदगी तो बदल जाएगी। आज आप जवान हैं, कल बूढ़े हो जाएंगे। हिज कंसेप्ट ऑफ ब्यूटी इज ट्रेजिक। ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू दिस एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू गिव यू। जैसे आपने एक गुलाब का फूल हाथ में लिया है, you have a rose in your hand and you feel that the rose is very beautiful,
But if you were intellectual enough and if you see forward, you will start getting sorrow, you will start getting sad, because now you think that very soon it is going to fade up. ये फेड हो जाएगा, मुरझा जाएगा, और जो ये आपके दिमाग में एक सोच आएगी कि ये मुरझा जाएगा, खत्म हो जाएगा, सूख जाएगा, डेथ हो जाएगी इसकी, that very thought will provide you a kind of sorrow. That very thought will provide you a kind of pain. आपको बड़ा दर्द होगा अंदर से कि यार अभी इतना खूबसूरत है और कल ये इतना खूबसूरत नहीं रहेगा। तो क्या है पता है आपको? That thought came inside your brains only because of the transitory nature of life. कला में समझ लीजिए, जॉन कीट्स का एक ओड है, when you go through that very ode, the philosophy will not be far from you. कैसे? उनकी एक पोएम है ओड ऑन अ ग्रीसियन अर्थ, या ओड टू अ ग्रीसियन अर्थ, स्पेलिंग और ग्रामर दोनों मैच करिएगा, ओड टू अ ग्रीसियन अर्थ और ओड ऑन अ ग्रीसियन अर्थ। कैसे कहता है उसमें वो? उसमें देखिए कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं उस कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास आपको करता हूं। उसमें एक स्टैंजा आता है जिसमें एक प्रेमी है, वो अपनी प्रेमिका को किस करने के लिए जाता है बड़ी तेजी से, इन हेस्टी वे। वो किस करने की कोशिश करता है अपनी बिलवेड को, लवर ट्राइज टू किस हिज बिलवेड, लेकिन पोएट कहता है नो thou can't kiss him, अब तुम उसे किस नहीं कर पाओगे। ऐसे छपे हुए हैं वैसे है और बिलवेड उसकी सामने है। कहता है अब तुम इसे किस नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि नाउ यू हैव बीन कन्वर्टेड इनटू आर्ट, अब तुम आर्ट में परिवर्तित कर दिए गए हो। नाउ चेंज इज नॉट पॉसिबल, अब चेंज संभव ही नहीं है। जिस हालत में तुम छाप दिए गए हो, जिस हालत में तुम्हें क्रिएट कर दिया गया है, वो हालत अब कभी भी परिवर्तित नहीं हो सकती है, परिवर्तित हो ही नहीं सकती है। अब तुम उसे जीवन भर कभी भी किस नहीं कर पाओगे। हाँ, लेकिन इसमें एक फायदा है, नुकसान तो हो गया कि किस नहीं कर पाओगे, लेकिन एक फायदा है कि अब वो कभी भी बूढ़ी भी नहीं होगी, कभी तुम्हारी नजरों से दूर नहीं होगी, सदैव वो तुम्हारे सामने रहेगी, जैसे आज ये दिखाई दे रही है। ये जो तस्वीरें हैं वो एक अर्न पर छपी हुई हैं, अर्न कलश पर छपी हुई हैं, जिसको देखकर जॉन कीट्स इतना सब कुछ इमेजिन करके लिखता है। तो जस्ट ट्राई टू थिंक the power of art, that art gives you a kind of permanence, stability. Art cannot be changed, and you know that change is the only permanence. केवल परिवर्तन एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदलती है, लेकिन इसको भी पार कर जाता है। आर्ट बहुत ही कमाल की चीज है। इसी पोएम में, इसी ओड में जॉन कीट्स ने एक बड़ी ही अच्छी लाइन लिखी है, दैट इज रियली रिमार्केबल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वैल्यूलेस, इनवैल्यूएबल यू कैन से। कहता है हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। हर्ड मेलोडीज आर स्वीट, ये देखिए, ये कई बार एग्जाम में आया कि कहां ये बोला गया है, तो ओड क्रिश्चियनर, हर्ड melodies are sweet but those unheard are sweeter. बहुत ही अच्छी बात कही गई। अगर इसको आप एक्सप्लेन करें, इसकी इमेजिनेशन में जाने की कोशिश करें, तो गजब की लाइन है। क्या कहता है वो? कहता है जिन संगीतों को हम सुन लिए हैं वो तो मीठे हैं, बट जो सुने नहीं है, केवल हमारी कल्पनाओं में हैं, वो ज्यादा मधुर हैं।
ट्राई टू इमेजिन, कल्पना करिए आप कि जैसे आप एक गाना कोई है उसे आप टीवी में देख रहे हैं, पूरी तरीके से उसके बैकग्राउंड को देख रहे हैं, सीन को देख रहे हैं, नायक नायिका को देख रहे हैं, सब कुछ दिखा दिया गया। नाउ यू डोंट हैव स्पेस टू इमेजिन, यू डोंट हैव स्पेस फॉर इमेजिनेशन। कल्पना के लिए आपके पास कोई स्थान नहीं है। अगर वही गीत आप टीवी में देखने से पहले किसी रेडियो में सुनते हैं, केवल सुनते हैं, और गीत खूबसूरत है, तो नाउ यू हैव द स्पेस फॉर इमेजिनेशन। आपको ज्यादा मधुर लगेगा। यू हैव द स्पेस फॉर इमेजिनेशन, यू कैन फिल दैट स्पेस विद द कलर ऑफ इमेजिनेशन। आप कल्पना के रंग से उस स्थान को भर सकते हैं। बड़ी आसान सी बात है। दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं कि इस दुनिया में जो आपको मिल जाता है वो अच्छा है, और जो मिलने वाला है या नहीं मिलता है वो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज यू ऑलवेज रन आफ्टर दैट। उसके पीछे आप भागते हैं। जॉन कीट्स कुछ ऐसी ही बातें। हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। जो नहीं सुना है ना, जिसमें अभी कुछ उम्मीदें बाकी हैं, वो ज्यादा मीठी होती है। तो जस्ट ट्राई टू क्रिएट आइडियल्स, डोंट ट्राई टू टच एवरीथिंग। आइडियल्स बनाने की कोशिश करिए। हर चीज पाने का प्रयास मत करिए, हर चीज नहीं पाने का प्रयास करिए। तो ये इनका जो कॉन्सेप्ट है, दिस लाइन you find, this concept you find in his ode to Grecianer or ode on a Grecianer. And now the poets like John Keats, especially the poets from Romantic era, believe in art in a way that they seem to say that art is superior to life. Art is superior to life. Art is superior to life. जीवन जो है ना वो कला से, जीवन जो है ना वो जीवन से ज्यादा श्रेष्ठ है। कला जो है वो जीवन से ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि आर्ट इज परमानेंट, while लाइफ इज एफिमेरल, लाइफ इज ट्रांजिटरी, लाइफ इज चेंजेबल, परिवर्तित हो जाएगी कुछ पल के लिए, उसमें अस्थायित्व नहीं। यहां देखिए, जॉन कीट्स in his works deals with aesthetic beauty. यहां आप समझने का प्रयास करिए। जैसे ये शब्द है एस्थेटिक, तो बहुत सारे लोगों के मस्तिष्क में आता है कि एस्थेटिक का मतलब होता है आध्यात्मिकृत। ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं। शब्द ही कुछ ऐसा है कि सुन के लगे एस्थेटिक ब्यूटी, स्पिरिचुअल ब्यूटी। नो, नॉट एट ऑल। एस्थेटिक डजंट मीन स्पिरिचुअल, डजंट मीन जेन्युइन, डजंट मीन रियल। एस्थेटिसिज्म, सौंदर्य शास्त्र, ये सौंदर्य शास्त्र से अर्थ संबंध रखता है। एस्थेटिक मीन्स सिंपली एडेड ब्यूटी, एडेड ब्यूटी, एडेड ब्यूटी, टेक्निकल ब्यूटी। इसके कुछ ब्यूटी थ्रू द यूज ऑफ कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स का यूज करके जब आप ब्यूटी बनाते हैं, मतलब एक सुंदरता तो वो है जिसे हम नेचुरल कहते हैं, दैट हैज बीन प्रोवाइडेड टू यू बाय गॉड, जिसको आप
वो ईश्वर ने दिया है, और एक वो होता है कि हमारे पास कुछ सौंदर्य प्रसाधन है, सौंदर्य की चीजें हैं, क्रीम, पाउडर, इटीसी, उसको यूज करके हम और सुंदरता उसमें जोड़ने का प्रयास करते हैं। दैट इज एस्थेटिक ब्यूटी। एस्थेटिक सिंपली अ वर्ड वेरी नियर टू टेक्निकलिटी, टेक्निकल ब्यूटी। ठीक है, तो एस्थेटिक ब्यूटी से ये बिलोंग करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो नेचुरल ब्यूटी को डिनाई करते हैं। मैंने कहा एडेड ब्यूटी, जो ब्यूटी ऑलरेडी है उस ब्यूटी को ही डजंट डिनाई, बल्कि उसमें दूसरे ब्यूटी को जोड़ने की बात वो करते हैं। ठीक है, इनका एक बहुत ही पॉपुलर स्टेटमेंट है जिसमें वो कहते हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी is joy forever. A thing of beauty is joy forever. चाहे फॉर एवर को आप अलग अलग लिख दीजिए, चाहे फॉर एवर को आप एक साथ लिख दीजिए, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। इन्होंने कहा सुंदरता हमेशा के लिए आनंद का विषय है। अब महत्वपूर्ण इसमें यह है, पहली चीज तो ये किसने कही, तो आपको पता है कि जॉन कीट्स सेड दिस। एक तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। इसी पर दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि वेयर वी फाइंड दिस लाइन, तो आप जानिए दिस is the first line of एंडीमियन। एंडीमियन उनकी जो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, उसकी ये पहली लाइन है, ये महत्वपूर्ण है। दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ एंडीमियन। ठीक है, नाउ we'll try to discuss Keatsian writings in two ways, and only after that we'll be able to understand the concept of his writings. एक वे होता है जिसे हम कहते हैं सिंक्रोनिक वे, एक होता है जिसे हम कहते हैं डायक्रॉनिक वे, ये होता है सब्जेक्टिव वे, और ये होता है ऑब्जेक्टिव वे। इसको हम एक्सट्रिंसिक वे भी कह सकते हैं, अगर इसको एक्सट्रिंसिक कहेंगे दिस विल बी कॉल्ड इंट्रिंसिक वे। If we see the tragic poems of John Keats, if we see his poems like Ode to Nightingale, Ode to Melancholy, Ode to Autumn, Ode on a Grecian Urn, if we see these poems in a synchronic way or in a synchronic method or on the synchronic axis of looking, we see these poems, we find that this is not only the poems of, these are not only the poems of John Keats, but of all those persons who have not well been responded in his life or in their life. बड़े आसान शब्दों में, if we see his poems on the diachronic axis of looking, we find this is not or these are not. एक पोएम की बात करें तो this, एक से अधिक पोएम्स की बात करें तो these.
So these are not the poems written by diachronic way. देखिए समझने का प्रयास करिए. सब्जेक्टिव का मतलब केवल पोएट से जोड़ के देखेंगे. कहेंगे these are the poems by John Keats as a person who have not been responded in his life well, who saw his brother Tom vomiting blood, rejection of his beloved Fanny Browne, and when we see it on the synchronic axis of looking, objectively देखेंगे तो this is or these are not the poems of John Keats only, but of all those persons who have not well been responded in their life. This अगर हम जॉन कीट्स के जीवन से जोड़ के देखेंगे तो ये कविताएं जॉन कीट्स एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ी हुई हैं जिसने अपने भाई टॉम को खून की उल्टियां करते हुए देखा, जिसने अपनी बेलवेड फैनी ब्राउनी का कुछ हद तक रिजेक्शन देखा. लेकिन अगर इसको हम सिंक्रोनिक वे में इसको ऑब्जेक्टिव बना देंगे तब हम पाएंगे कि केवल ये जॉन कीट्स की कहानी नहीं है, बल्कि ये उन सब की कहानी है, उन सब की कविताएं हैं, उन सब का दुख है जिनके ऊपर जीवन ने सही निगाह नहीं डाली, जिनके ऊपर जीवन ने सही निगाह डाली ही नहीं. ये इनकी बिलवेड का नाम था फैनी ब्राउन. बच्चे इसको समझने का प्रयास करिए. तो ये बड़ी सामान्य सी बात नहीं है. इनके लिए देखिए जॉन कीट्स डिफाइंड poetry and incarnation of beauty. इनका मानना है कि जो पोएट्री है वो सुंदरता का अवतार है, जो सुंदर है वही पोएट्री है. इन्होंने ओथ नग्रीसन में कहा क्या कहा, इन्होंने कहा ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी. सुंदरता ही सत्य है और सत्य ही सुंदरता है. बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने ये बात कही कि हाँ ओड ग्रेसियन. तो आपके जॉन कीट्स बिलोंग करते हैं रोमांटिक एज से. इनका कॉन्सेप्ट है हेलेनिज्म, इनका कॉन्सेप्ट है एस्थेटिसिज्म, इनका कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक सेंसिबिलिटी, इनका कॉन्सेप्ट है नेगेटिव कैपेबिलिटी. And he was well influenced by great poet of Elizabethan period, Edmund Spenser. So, we'll discuss John Keats in details, with his works in details, only when you will take admission and join our regular classes. This much is for today. Thank you.